Bangladesh is at present at its historic point. At this juncture, wherein the Prime Minister, in an unprecedented manner, had to flee her country. If you will take the closer look on this each and every statement, it will be directly indicate about the Sheikh Hasina. It's just about the nexus or instability or unbalanced attitude between the economic growth and democratic values. Could be possible that it might be misguided by China or ISI. Welcome to Forum for Global. We are today going to discuss the crisis in Bangladesh, wherein the Prime Minister of Bangladesh had to fled her country. We are joined by Brigadier Shardendu, who is a defense expert, and Mr. Sandeep Srivastava, who is owner and proprietor of Sandeep IAS Academy. I will start with Sandeep about this crisis, which has occurred only yesterday. It unfolded yesterday. Bangladesh is at present at its historic point. At this juncture, wherein the Prime Minister, in an unprecedented manner, had to flee her country. Sandeep, how do you think the events unfolded, starting from July 1st, wherein the protests started against the quota for government jobs, which was given to kins of the veterans of Liberation War of Bangladesh? Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this golden opportunity to give in this academic forum, which is called Forum for Global Studies. As far as the situation and the crisis in Bangladesh is concerned, I would like to quote the Munawwar Rana. Once he said कि बुलंदी बहुत देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, इमारत जितनी ऊंची हो उतने ही खतरे में रहती है, और ये कैसा कर अदा कर ही नहीं सकता मैं जब तक घर न पहुंचूं मेरी मां सजदे में रहती. If you will take the closer look on this each and every statement, it will be directly indicate about the Sheikh Hasina. In short, if I will say that what is all about this unprecedented or high-class drama, it's just about the nexus or instability or unbalanced attitude between the economic growth and democratic values. यदि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस किया फ्रॉम द पास्ट 10 years. About the per capita income, definitely Bangladesh per capita income is much more higher than Pakistan and India, even India. So Bangladesh was leading in various sectors. As far as the poverty is concerned, it has lifted 25 million people from the poverty. So this was the Sheikh Hasina. But still there is a two sides of each and every coins. So this is life is not all about the bed of roses. Whatever I told you, that is the positive aspects. But if we can concentrate on the challenges, there are many challenges. Father of microfinance, Muhammad Yunus, who has revolutionized the segment of debt. He discovered the microfinance institutions, MFI, which is very much prevalent in across the globe. But Sheikh Hasina was not happy with the growing popularity of Mr. Muhammad Yunus, and from the past few years he has been in the jail. So this was something which was not liked by the people of Bangladesh. Apart from that, Sheikh Hasina's repressive policy created a kind of dissatisfaction, or people got disheartened. And as far as economic growth is concerned, she was very, very perfect. But as far as the democratic values are concerned, she was not good at all. So I am just giving you one by one that the basic things which took place. क्या सबसे बड़ी वजह रही? So first one is quota system controversy. This was the rather I will say this was the precursor of the whole episode. कोटा सिस्टम कंट्रोवर्सी ये था कि 2018 से पहले 30% रिजर्वेशन बांग्लादेश ने दिया था उन लोगों के लिए
जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया, उन लोगों के लिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में, उन लोगों, उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कुल आंकड़ा 3, मतलब if you will talk about the 30% reservation quota, it was exclusive for those people who worked as a freedom fighter for the independence or for the liberation of the Bangladesh. Second one is religious minority. Third one is the district which are lacking in socio-economic development, means they are grappling with the challenges related with the health issues and education. 2018 से पहले था, लेकिन अभी क्या हुआ कि फिर से रिसेंटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और एक बहुत छोटी सी बात है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है, कि बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इफ यू विल टॉक अबाउट द labor force, 42% female are employed in the Bangladesh, which is more higher than the Indian. And this was something which is not liked by the male people from the Bangladesh, because job are very less. And whatever job is available in the Bangladesh, that is already occupied by the 42% female. So youth are simply wandering here and there. And that was also one of the cause of the dissatisfaction for the government. वहां पे जॉब की बहुत ज्यादा कमी है और जॉब की कमी होने there are 2-3 things which came about in this discussion. First, one major problem which is attributed to these protests are about unemployment itself. Unemployment is a big problem, big challenge in Bangladesh. As you brought out about the Muslim population, which 91% of Bangladesh comprises of Muslims. So the minority is only 9%. So that is there. Thereafter, the third problem is the way Jamaat-e-Islami has been taking roots, which is supported by Jamaat-e-Islami has also promulgated its own constitution, which was, and that is the reason it was not recognized as a political party, because Jamaat-e-Islami's constitution was they put it higher pedestal than the national constitution, which was opposed by intellectuals there. The third issue, major issue, which I feel has brought this situation is about opposition. There should be a viable opposition, and this is the lesson we should learn. If their opposition becomes too weak, wherein there is no representation of the people, then the people take to streets. And that is what happened in Sri Lanka. That is what happened in Bangladesh. In fact, similar thing happened in Afghanistan also. So let's steer this discussion. What happened yesterday per se, from 1st of July till yesterday. And, one of the most violent days were Sundays, where 90 people, and, Monday, this is what she had to flee. What resulted into all this, wherein Sheikh Hasina was at one point a pro-democratic icon in the whole world. How did she turn into an autocrat? Can you throw some light on this? So this is what exactly I was trying to convey you, that reservation was there, but this there was another thing which created a lot of hue and cry among the masses, and she said those people who are involved in the protest, they are people who are Rajakar. So this is the Hindi word Rajakar. Rajakar का मतलब ये होता है, उनका ये कहना था कि प्रोटेस्ट तो ठीक है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो रजाकार. This has created in the masses, among the masses. रजाकार आपको बता दूं कि नहीं, रजाकार जो शब्द है बांग्लादेश में बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा. उसका कारण है रजाकार वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया था. रजाकार जब पाकिस्तानी आर्मी वहां पे जिनोसाइड कर रही थी, और साफ लहजे में बोले
तो फीमेल के साथ रेप तक किया। उसमें कुछ बांग्लादेश के ऐसे लोग थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी को। उसको रजाकार कहा जाता है, और उन्होंने बोल दिया कि ये रजाकार हैं। तो ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक गुस्सा हुआ उससे। और जहां तक सर आपने पार्टी की बात की है, तो जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, सेकंड पार्टी का नाम क्या लिया था सर आपने? जमात, जी, जमायते जमात इस्लाम इस्लामी, और बांग्लादेश इस्लामी। नेशनलिस्ट पार्टी, ये दोनों ही प्रो पाकिस्तान है, दोनों ही प्रो चाइना है, और दोनों के अंदर इंडिया के लिए बहुत नफरत है। हमारे लिए एक अच्छी खबर थी कि जो अब शेख हसीना है, वो इंडिया को समझती थी, इस्लामिक चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, कहीं ना कहीं सेक्युलर एटीट्यूड था उनके अंदर। इसमें ऐड करने की बात जहां तक है सर, देखिए, सर की बातों से मैं सहमत हूं, बट चाइना पहले क्यों नहीं प्रोवोक किया इसने बांग्लादेश को? मतलब कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है। मैं गलती बता रहा हूं सर, क्या हुआ है, बेसिक क्या है। यदि फॉरेन रिजर्व की बात करें आप, इंडिया का भी फॉरेन रिजर्व खराब हुआ था 1991 में। और उस समय मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव ने उनको बुलाया और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया, और वर्ल्ड बैंक के पास गए। और वहां से फिर एलपीजी आया हमारी कंट्री में, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इसके तहत हमारा फॉरेन कैश रिजर्व बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे इनका फॉरेन कैश रिजर्व एकदम खत्म हो गया था, हाफ से भी नीचे था सर। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ था उनके अंदर। दूसरी बात करें तो उनके यहाँ टका चलती है करेंसी के नाम पे। टका जो है वो 40% डॉलर की तुलना में नीचे आ गया। अभी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इस तरीके की। इन्फ्लेशन की बात करें, 20%, 18 to 20% के आसपास इन्फ्लेशन चला गया। तो ये नेपोटिज्म की बात मैं करूं सर, तो अभी जो वहां के आर्मी चीफ हैं, उनके भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ये शेख हसीना के। कोविड के बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ किया, सर भी बता रहे थे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कोविड के बाद से इनकी इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेंट रही है सर। और रसिया यूक्रेन का जो वार हुआ है, इस वजह से 3F, जिसको फूड, फर्टिलाइजर और एंड फ्यूल, 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 फ्यूल। हाँ, ये तीन चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पे। हमारे यहाँ भी हम गेहूं नहीं मंगा पा रहे हैं, दोनों कंट्री से हम मंगाते थे। तो आई थिंक कि ये सारे बेसिक चीजें हैं। इसके बाद कुड बी पॉसिबल कि इट 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 माइट बी मिसगाइडेड बाय चाइना और आईएसआई, इसमें कोई कोई डाउट नहीं हो सकता है। लेकिन इनका, ये शेख हसीना की बात करें तो कुछ गलतियां इनसे भी हुई हैं। ये एक एक्ट लेकर आई थी, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत कोई भी गवर्नमेंट के तहत कुछ भी बोलता था डिजिटली, आप व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट कर दो, फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दो, तो ये डिजिटल तो सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको उसका काफी ऑपोजिशन हुआ था, एंड पब्लिकली एंड लेकिन काफी। उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेड है सर, उसके बावजूद इसको इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा कुछ ये भी है कि जुडिशरी भी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी पूरे फ्रीडम से काम नहीं कर पा रहे थे। और ऐसी भी शिकायतें हैं कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो गया था जुडिशरी में, जैसे आपको चाहिए होते थे फैसले, वो आपको मिलते थे। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप इसको भी नकार नहीं सकते कि चाइना और पाकिस्तान का बहुत ही एक्टिव हाथ इसमें रहा है, उसको भी बिल्कुल आप नकार बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन अब यही कहना कि अपना सोना खराब है तो जौहरी का क्या दोष। हमारा ये चीज, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे, जो भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी, वो यदि स्ट्रांग होती तो किसी चाइना और किसी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होती। रही बात कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा आशंकित हूं, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि ये प्रो इंडिया थी शेख हसीना। बहुत अच्छा हमारा संबंध रहा है। कहा जाता है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में इंडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उस समय हमारे जो रिलेशन हुआ करते थे बांग्लादेश से, उससे भी ज्यादा अच्छा अभी के डेट में चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश का। लेकिन अब ये बीएनपी यदि आती है, या फिर ये आपने जमाते इस्लाम की बात की, पाकिस्तान है, दोनों ही नहीं रेडिकल देखिए, एलिमेंट।
संदीप, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और इसमें डिस्कशन में एक एलिमेंट लाना चाहूंगा। जी जब जी तालिबान ने जब सत्ता संभाली थी अफगानिस्तान में, जी सर। तभी ऐसी बातें हो रही थी कि अब क्या होगा, भारत के साथ रिलेशन कैसे कैसे रहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज भी हमारे रिलेशन अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं, बल्कि पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हैं अफगानिस्तान के साथ, और हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ भी हमारे रिलेशन हमारी अपनी कूटनीति से अच्छे ही बने रहें, और जो कि हमारे लिए भी अच्छा है, बांग्लादेश के लिए भी बहुत जरूरी है। अब लास्ट में सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी लीडर का असली लीडरशिप क्वालिटी तभी होती है जब वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी इंश्योर करे। शेख हसीना ने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे वो फेल रही, और इस वजह से नतीजा देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके लिए एक आत्म मंथन का विषय है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो जरूरी है हमारी लाइफ में, लेकिन इसके साथ साथ हमको बेसिक वैल्यूज, एटिकेट्स जो सिखाए जाते हैं, जो जो मौलिकता सिखाई, जो नैतिकता सिखाई जाती है, जो इथिक्स और इंटीग्रिटी सिखाई जाती है, उसको भी जब तक हम अपने अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे तब तक हमारा ग्रोथ सुनिश्चित नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद के एक कोट से मैं खत्म करना चाहता हूँ कि एन एबिलिटी विल गेट योर सक्सेस बट कैरेक्टर विल कीप यू सक्सेसफुल। दोनों चीजों की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप। एक और भी चीज जो मैं इसको फिनिश होने से पहले बोलना चाहता हूँ, कि कोई भी यस डेमोक्रेसी थ्राइव तभी करेगी जब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। ये बिल्कुल। तो कभी पॉसिबल नहीं, जो शरदेंदु सर ने भी बताया कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही जीत के आएगी, और उसको हम डेमोक्रेसी कहें, ये तो इसको तो हम्म। अतिशयोक्ति कहेंगे।